Hey guys, welcome back to the explained section to examination series by UPSC Gaur se Padho, where we are covering the most important section of the Indian Express, and that is the explained section. Why are we covering the explained section? मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, because UPSC प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड सेक्शन से उठाकर पूछता है. अब मैं कौन होता हूं आपको एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ाने वाला? So, मेरा नाम है विभू गौर and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, we have built a community of more than 88,000 aspirants on my Instagram channel, and we have touched 10,000 subscribers on our YouTube channel. I am so grateful. I'm so happy. I feel so lucky that I'm getting this opportunity to teach all of you. It is a lovely experience and I'm thoroughly enjoying it. Now, in the explained section to examination series, we cover the explained section on a weekly basis. But I know we are running very late. I'm so sorry about it. I had classes. We were also running a refresher course, because of which the videos got delayed. But I promise you, I have already promised you that we will cover the entire explained section before your preliminary examination on YouTube free of cost. So in this video, we are going to cover the explained section from 28th July till 17th of August, यानी कि 3 वीक्स का मिला के. तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है. एक बात मैंने बोला है that if you will follow this series consistently, I can guarantee you that you will get a benefit of 10 marks at least, minimum. ज्यादा भी हो सकता है in your prelims exam. Although अभी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, but trust me, आपको ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये प्रीलिम से पहले इतना हेल्प करेगी ना. इसको 2x पे लगाकर सुनोगे, प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की रिवीजन हो जाएगी. Also, we are about to start something really unique and extremely value for money, जिसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा एग्जाम में on our YouTube channel related to means. ठीक है, तो आपका मेंस के करंट अफेयर्स का भी काम मैं YouTube पर करवा दूंगा. ठीक है जी, चलिए. लेक्चर से पहले कुछ रूल्स. During the lecture, I will throw some really interesting questions. You have to pause the video and answer those questions. After watching the entire video, do let me know in the comment section that how many number of questions you attempted, how many did you get correct, how many did you get incorrect, and how many did you skip. आपको पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. Also, the notes that you are going to see in this video are available on my Telegram channel. जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं. So, क्लास की शुरुआत एज यूजुअल हमारे प्यारे सवाल के साथ. निसार न्यूज में था, सवाल को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो. मैं भी पढ़ता हूं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंथेटिक एपर्चर रेडार एंड निसार मिशन. अच्छा जी. Number 1, NISAR is an Earth observation satellite jointly developed by NASA and ISRO, equipped with 2 types of SAR. भैया ये SAR क्या होता है? Every Earth observation satellite necessarily carries a synthetic aperture radar. फिर से SAR. S-band SAR uses short wavelengths to capture larger features, whereas L-band SAR uses longer wavelengths to capture finer details. बता दो क्या सही है? अरे भैया क्वेश्चन ही भाग गया. कोई बात नहीं, देखते हैं. आपने जो भी आंसर सोचा होगा, अभी उसका जवाब आपको मिल जाएगा. देखो, अगर मैं आपको बोलूं कैमरा और रेडार, आपको मालूम है कैमरा क्या करता है? कैमरा कैप्चर करता है, फोटो कैप्चर करता है. आप खींचते हो ना अच्छी अच्छी फोटो. एंड रेडार क्या करता है? रेडार डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन करता है. एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूं. कैमरा के लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ती है. इफ देयर इज गुड लाइट, यहां पे जैसे अच्छी लाइट है तो कैमरा अच्छा काम कर रहा है. बट रेडार कैसे भी काम कर सकता है. अगर मैं आपको बोलूं हम कैमरा और रेडार का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक हाइब्रिड बना रहे हैं, दैट इज नोन एज SAR. इट इज बेसिकली अ कैमरा एंड अ रेडार टुगेदर. इतनी बात समझो. ठीक है भैया, इतनी बात तो समझ आती है. अब SAR का काम आपको समझ आ गया. कैप्चर करना, डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना. ठीक है, अच्छा. और फिर उस इनपुट के बेसिस पर एक डेटा पूरा निकालकर बताना कि क्या फीचर है, क्या उसकी डिटेल्स है. मोटी बात है ये. SAR 2 तरह के हो सकते हैं, S बैंड एंड L बैंड. S यानी कि शॉर्ट, ऐसे याद रखना है. L यानी कि लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग हाई. S यानी कि शॉर्ट. अब ये जो SAR है, ये निसार सैटेलाइट पर लगा हुआ है, वो घूम रही है. अब जो S बैंड SAR है, वो शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट वेव लेंथ की माइक्रोवेव्स को सेंड करेगा. समझ लो, सिग्नल सेंड करेगा. और जो मोटे मोटे फीचर्स हैं, लार्जर फीचर्स हैं कि बच्चा अच्छा यहां पर ऐसा फॉरेस्ट है, यहां पर ये ग्लेशियर है, इस तरह का डेटा देगा. बट एल बैंड SAR फाइनर डिटेल्स पर फोकस करेगा. लॉन्गर हायर वेवलेंथ
सेंड करेगा और उसके बेसिस पे एकदम प्रिसीजन के साथ बताएगा कि भाई यहां पर एग्जैक्टली क्या है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। एल बैंड SAR, it can penetrate through tree cover, ice, sand to map the ground below by using higher wavelength microwaves, higher wavelength। एग्जैक्ट डेटा मिलेगा आपको। S band SAR, it uses shorter wavelength, it cannot penetrate very deep into the ground, but S band SAR can capture features such as crop fields and water bodies। मोटे मोटे बड़े बड़े फीचर्स, ठीक है, बहुत फाइनर डिटेल्स नहीं मिलेंगी। तो एक बात समझ आई कि निसार सैटेलाइट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें ये 2 SAR लगे हुए हैं। इसी के साथ में देयर इज अ सोलर एरे। ये सोलर एरे है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू मेक द सैटेलाइट रनिंग, टू कीप द सैटेलाइट रनिंग। देन एक रेडार एंटीना रिफ्लेक्टर है। इसकी यूनिक बात क्या है कि बहुत छोटा है साइज में, जस्ट 12 मीटर डायमीटर, 12 मीटर का डायमीटर है बस इसका। अगर आप ग्राउंड बेस्ड एंटीना के कंपैरिजन में देखेंगे तो उसका 20 किलोमीटर का डायमीटर होता है, तो वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, जो ये मैंने बोला एल बैंड एंड एस बैंड, ये जो सेंड करेंगे हायर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ, ये क्या सेंड करेंगे? ये सेंड करेंगे माइक्रोवेव्स। क्या ये विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है? नहीं। विजिबल जो आपकी आंखों को दिख सकता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये नहीं दिख सकते। तो ये क्या सेंड करेंगे? माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स एज वेल, ठीक है। तो ये बात थी निसार की। अब जरा क्वेश्चन को देखो। सो इज इट अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो? ट्रू। 2 टाइप्स ऑफ SAR? ट्रू। अब ये सवाल देखो, स्टेटमेंट देखो, एवरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेसेसरीली कैरीज अ SAR? नो। भाई कैसे? खाओ मां कसम, जरूरी है क्या? नहीं, ठीक है। थर्ड, S band SAR uses shorter wavelengths to capture larger features, whereas L band SAR uses longer wavelength to capture finer details। Exactly correct। तो भैया आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 1 and 3 only। ठीक है जी, 1 and 3 only आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। भैया समझ आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट एंड कार्बन साइकिल एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, भैया फिर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इतना भसड़ हो रही है इस धरती पे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब स्टेटमेंट 1, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नेट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज the release from decomposition is far greater than the absorption through photosynthesis, while boreal forests act as the main sinks of carbon on the planet। Statement number 2, satellites designed to study the carbon dioxide can work only if they are placed in sun synchronous orbit and cannot function in any other type of orbit। हाय राम। अच्छा देखते हैं, देखो न्यूज क्या थी। न्यूज ये है कि एक OCO यानी कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, एक ऐसी सैटेलाइट जो कार्बन को ऑब्जर्व करती है स्पेस से, नासा ने लॉन्च करी थी। अब ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि इस पे बहुत खर्चा हो रहा है, इसको बंद करो, तो बस उसके बारे में न्यूज आई थी। अब ये जो OCO यानी कि ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, बिल्कुल। ये ऑब्जर्व करती हैं कितना कार्बन है, कितना रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत वैल्यूएबल डेटा ये प्रोवाइड करती हैं साइंटिस्ट को, ठीक है। पर इस पूरे आर्टिकल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी थी। इस सैटेलाइट के डेटा से हमको ये पता चला कि ऑल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ, बट जो बोरियल फॉरेस्ट है ना, ये भी एक मेजर कार्बन सिंक का काम करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पर अगर आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे तो वहां क्या लिखा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नेट एमिटर ऑफ CO2। नो, ये बात गलत है। पहला स्टेटमेंट का पहला पार्ट गलत है, ऑल्दो सेकंड पार्ट करेक्ट है। बोरियल फॉरेस्ट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्यों? क्योंकि पहला पार्ट गलत है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जरा देखो, सैटेलाइट्स डिजाइन टू स्टडी CO2 कैन ओनली बी प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्यों भैया? ये उसके चाचा का घर है, क्यों भैया ऐसा क्यों? एक जो ये OCO है ना, ये एक सन सिंक्रोनस में है जहां से वो एक ही पॉइंट को बार बार देखती रहेगी, लेकिन एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी है। तो ऐसी स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में गलत होती है। आंसर क्या हो गया? नीदर 1 नॉट 2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा हम मैपिंग पे जाएंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैपिंग के पॉइंट्स हैं। भैया पहले तो ये काम चार्ट का अर्थक्वेक आया, तो आपको मालूम होना चाहिए अबाउट द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में मैंने लिख दिया है, 3 मेजर जोन्स हैं, देखो ध्यान रखना। एक तो रिंग ऑफ फायर हो गया, यहां पर बहुत अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, वोल्केनोज भी होते हैं। एक है आपका मिड अटलांटिक रिज, ये भी बड़ा खतरनाक जोन है। ऑल्सो ना जो सारी प्लेट्स हैं उनकी मैपिंग कर लेना। मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी जो प्लेट्स है, कौन सी प्लेट कहां है, उसकी मैपिंग पर क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, ये 2 रीजन हैं। अब एक थर्ड रीजन भी है, आई डोंट नो ये मैंने एक्सप्लेन में कवर किया है या नहीं, क्लास नोट्स में तो डेफिनेटली करा है। जरा इसका आंसर दो, जरा इसका आंसर दो।
With reference to seismic zones in India, consider the following statements. The run of Kutch in Gujarat, parts of North Bihar and Andaman and Nicobar Islands fall under the same seismic zone 5 under the Alpine seismic belt. And seismic zone 2 is more prone to earthquake than seismic zone 5. क्या है इसका आंसर? भैया पहली स्टेटमेंट तो गलत है. रन ऑफ कच्छ, गुजरात, अंडमान, आप क्या बोल रहे हो? बिहार, ये क्या सब सेम हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते. हम मानते ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं. ठीक है. अच्छा, सेस्मिक 2 जोन 2 इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक. भैया रैंक 1 आती है तो हम ज्यादा प्रोन होते हैं सक्सेस के, ज्यादा मोर प्रोन होते हैं टू गेटिंग करप्टेड इन आवर हेड कि भैया हम तो कौन ही बन गए हैं. पर इस केस में ऐसा नहीं है. देखो, आप गलत हैं. सिस्मिक जोन 2 इज लीस्ट एक्टिव. सिस्मिक जोन 5 इज हाईएस्ट एक्टिव जोन, मोस्ट वल्नरेबल जोन. ठीक है, तो ये लीस्ट एक्टिव, ये हाईएस्ट एक्टिव. लेकिन एक कमाल की बात सोचो, ये एक थर्ड रीजन है जो मैंने बात करी थी ना आपसे ऊपर. क्या था? रिंग ऑफ फायर और मिड अटलांटिक रिज. अब यहां पर है जी अल्पाइन हिमालयन साइस्मिक बेल्ट एक्सटेंडिंग अप टू अंडमान निकोबार आइलैंड इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये देखो कहां से, यहां मेडिटेरेनियन से चल चल के पूरा ये हिमालय गुजरात क्रॉस करके अंडमान तक. जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है. आंसर क्या हो गया? 1 ओनली. अरे हमने तो यहां आंसर मार्क ही कर रखा है. हो, कोई बात नहीं. चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन देखो, मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया है. ठीक है, मेरा फेवरेट है ये. आईमेक तो भैया आसान टॉपिक है, हमें मालूम है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़ो. The frame concerning the India Middle East Europe economic corridor, consider the following propositions. Number 1, the framework of IMEC does not envisage a singular linear passage but rather two distinct axes, an eastern stretch intended to establish maritime port connectivity between Indian landmass and Arabian littoral, and a northern extension conceived to link the Arabian Gulf terminals with continental Europe. भैया भारी इंग्लिश हो गई. कभी कभी लैंग्वेज भी क्वेश्चन को मुश्किल बनाती है, क्वेश्चन मुश्किल होता नहीं है. स्टेटमेंट नंबर 2, अमंग द एक्सप्लिसिटली enunciated, क्या स्टेटमेंट है? enunciated functional objectives of the corridor is not merely augmentation of physical infrastructure but also the facilitation of emergent domains such as cross regional digital interlinkages and the prospective translocation of clean energy resources, notably green hydrogen. आप लैंग्वेज देख रहे हो, मेरे लिए पढ़नी मुश्किल हो रही है. एग्जाम स्ट्रेस में जब आप ये लैंग्वेज पढ़ते हो, बात आसान है, अभी दिखाता हूं. स्टेटमेंट नंबर 3, within the Middle Eastern geography, entities such as the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia and Jordan have been delineated as pivotal stakeholders in the operationalization of IMEC. देखो भाई क्या बोलता है स्टेटमेंट, ये IMEC है. क्वेश्चन बोलता है जी ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न लेग है, ये वेस्टर्न पार्ट है. यहां पर इंडिया यूएई कनेक्ट हो रहा है, तो यूएई तो एक एंट्री पॉइंट है, पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है वो कनेक्ट हो रहा है, और दूसरी पार्ट में यहां से आप यूरोप कनेक्ट कर रहे हो. तो पहली स्टेटमेंट वही है भाई, पहली तो यही है ना, ईस्टर्न स्ट्रेच है. ठीक है, एंड उसके बाद एक नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, वो ये आप कह सकते हो, ये नॉर्दर्न एक्सटेंशन हो गई. ठीक है, जो वेस्ट को कनेक्ट कर रही है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. या सिर्फ फिजिकल इंफ्रा है ये? नहीं, आप ये भी इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है जिस पर क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल कनेक्टिविटी प्लस ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, ये भी इस प्रोजेक्ट का एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है. तो वही स्टेटमेंट 2 बोलती है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, डिजिटल इंटरलिंकेजेस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. बाकी सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड यूएई ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं. आप देख सकते हो यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल भी है, यहाँ जॉर्डन भी है. ठीक है, तो यहाँ लिखा नहीं है बट जॉर्डन भी है. तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है. आंसर क्या हो गया? डी 1, 2 एंड 3 ओनली. ठीक है, चलो. सिर्फ लैंग्वेज ने क्वेश्चन को मुश्किल किया. हाँ जी, अलास्का न्यूज में था. अलास्का में भैया पंचायत बैठ गई थी डोनाल्ड ट्रंप की, प्यूटिन की और उनके साथ में जेलेंस्की की. भैया देखो क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अलास्का, अब वहां पर वो सब जो हो रहा है उसका हमें इतना मतलब नहीं है, उसका एनालिसिस हम आईआर में करेंगे, लेकिन वहां की मैपिंग इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए. कैसे इंपॉर्टेंट है देखो. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ईच इन्वॉल्विंग अ ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ अलास्का एंड इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन. देनाली, क्या ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की? प्रूदो बे, major oil field situated on the southern coast of Alaska along the Gulf of Alaska. Bering Strait connects the Bering Sea and the Chukchi Sea, separating Alaska from Siberia. How many of the above pairs are correct? अब देखो ये 3 आप मैप्स को याद रख सकते हो. सबसे पहला तो अब ये देखो, प्रूदो बे,
बिल्कुल अलास्का में है, पर क्या ये सदर्न पार्ट में है? नहीं, साउथ तो ये होता है गल्फ ऑफ अलास्का के पास, ये तो ब्यूफोर्ट सी के पास है नॉर्दर्न साइड में। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो भैया गलत हो गई। ये एक मेजर ऑयल फील्ड है, इनफैक्ट सबसे बड़ा ऑयल प्रोविंस है, ठीक है। यहां की ऑयल डिस्कवरी ने अलास्का का नक्शा बदल दिया, ठीक है। बट ठीक है, आपको मालूम है ना, रशिया से खरीदा था अमेरिका ने अलास्का, और उसके बाद इसकी जो ऑयल फील्ड है, इसकी डिस्कवरी, ऑयल की डिस्कवरी ने इस डिसीजन को एकदम सही प्रूफ किया कि अमेरिका ने रशिया से ये क्यों खरीदा था, ठीक है। अच्छा, नाउ मेजर ऑयल फील्ड सिचुएटेड ऑन द सर्दर्न कोस्ट इज रॉन्ग, नॉर्दर्न कोस्ट है, ठीक है। बेरिंग सी देख लेते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी, चुक्ची सी, यहां बीच में है, रशिया को और यूएसए अलास्का को कनेक्ट करता है। यहां पर एक आइलैंड है डायोमीड आइलैंड, जिसके ऊपर मैंने एक रील बनाई थी और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। इनडायरेक्ट था बट पूछा था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। देन देनाली, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है भैया, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली अलास्का में लोकेटेड है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, ओनली 2 ओनली। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट? 2 पेयर्स ओनली, 2 पेयर करेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देखो भैया जरा, इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, ये सब न्यूज में रहता है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने लास्ट प्रीलिम्स में भी पढ़ाया था, आया नहीं, लेकिन ये कभी ना कभी आ सकता है। जरा इसको ध्यान से देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिलाडेल्फी एंड नेत्जरीम कॉरिडोर्स इन द गाजा रीजन। द नेत्जरीम कॉरिडोर इज अ डीमिलिटराइज्ड बफर जोन रनिंग अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा। अच्छा, एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर कट्स थ्रू सेंट्रल गाजा एंड वाज रिसेंटली क्रिएटेड बाय इजरायली फोर्सेस। देख लेते हैं। अरे भैया देखो, पहले ये देखो, ये है जी इजराइल का नक्शा, यहां पर ऊपर लेबनान है, इस तरफ जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है। आपको मालूम होगा यहां पे गल्फ ऑफ अकाबा है, यह इजिप्ट है, यहां मेडिटेरेनियन है, यहां डेड सी है, ये गोलान हाइट्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे। अब ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, इसकी मैपिंग यहां देखो, यहां ये 2 कॉरिडोर याद रखने हैं, नेत्जरीम कॉरिडोर एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर। अब इजिप्ट यहां पर है, यहां पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेत्जरीम कॉरिडोर इज बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा। नो 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 नो, Philadelphia corridor is between Egypt and Gaza, and Netzarim corridor is cuts through central Gaza and is created by Israeli forces recently. तो ये ऑपोजिट कर रखा है, तो आंसर क्या हो गया? नीदर 1 नॉट 2। इनके बारे में मैंने यहां पर लिख के दे भी दिया है, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नेत्जरीम कॉरिडोर, फिलाडेल्फी, इजिप्ट एंड गाजा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, आपको याद होगा एक ग्लेशियर था, हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुला में, ठीक है, वो न्यूज में था, उसकी वजह से एंडीज का क्वेश्चन आया। अब ये एक और ग्लेशियर न्यूज में है, पढ़ो। विद रेफरेंस टू पेरितो मोरेनो ग्लेशियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ रॉकीज इन अलास्का। हाँ जी, अलास्का रीजन न्यूज में तो है, आ सकता है, ठीक है। ग्लेशियर पेरितो मोरेनो वाज वंस कंसिडर्ड अ रेयरिटी, one of Patagonia's only stable glacier, but scientists have found the glacier is now in sudden and probably irreversible retreat, and this collapse is a warning for the world's remaining ice. देखो स्टोरी देखो, आपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया होगा। ये एक ग्लेशियर है, पेरितो मोरेनो, कहां पर है जी? ये ग्लेशियर है, सबसे पहले तो आप याद रख लो, आपका साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन में, ना कि रॉकीज में। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, अलास्का में नहीं है, एंडीज में है, ठीक है। अच्छा, नाउ जो ये ग्लेशियर है, इट इज, ठीक है, द पेरितो मोरेनो इज अ सेंटर पीस ऑफ लॉस ग्लेसियरियस नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको नोट कर सकते हो। पर ये ग्लेशियर एक टाइम पर सुपरस्टार ग्लेशियर था, क्यों? क्योंकि ये बेल्ट नहीं हो रहा था, ये इतना यूनिकली पोजिशनड है, ये एक्चुअली इसकी पोजिशन इसको मेल्ट नहीं होने दे रही थी, ये इनफैक्ट एक्सटेंड करता था टू अ पॉइंट कि ये एक टाइम पर वाटर लेवल तक को रोक दिया करता था, एक नेचुरल डैम का काम करता था। बट नाउ इवन दिस ग्लेशियर इज रिसीडिंग विच इज वेरी डेंजरस। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, करंट अफेयर है, 2 ओनली, 1 गलत है। इट इज नॉट इन अलास्का रीजन, नॉट इन रॉकीज, बट इन साउथ अमेरिका एंडीज, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये देखो भैया, तभी अटेम्प्ट करना जब आता है, recently India's first ever grassland bird census was conducted in which of the following? सिंपल आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। भैया काजीरंगा के अंदर बर्ड सेंसस हुआ था। एक बात जरूर याद रखना, इस बर्ड सेंसस के अंदर क्या यूज हुआ था? पैसिव अकूस्टिक मॉनिटरिंग टेक्निक और एक एआई टूल, एआई का एप्लीकेशन देख रहे हो, बर्ड नेट, जिसने आइडेंटिफाई किया था कौन सी स्पीशी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। चलो, अब
ये क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम अलग अजीब सा है। ठीक है, देखते हैं। विद रेफरेंस टू mycorrhizal fungi कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स फॉर्म सिम्बायोटिक रिले। क्या होता है सिम्बायोटिक? क्या होता है कॉम्पिटिशन? क्या होता है म्यूचुअलिज्म? पता है ना, इन्वायरमेंट की बुक उठाओ। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद mycorrhizal fungi. Second statement, they help in transporting nutrients to plant, storing carbon and bolstering soil health. देखो, ये देखो, ये फंगाई होता है। ये क्या करता है ना, ये बिल्कुल सही बात है, एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फॉर्म करता है विद द प्लांट, विद द ग्रास। वो जो ग्रास की रूट्स हैं उनसे अटैच हो जाता है, एक्सटेंशन का काम करता है, एंड इट हेल्प्स इन फॉलोइंग एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड्स रूट एब्जॉर्प्टिव एरिया। रूट जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट बाकी सारी चीजें, उस एरिया को एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर देता है। अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर में हेल्प करता है। एक तरीके से लगा लो स्ट्रॉ लग जाती है प्लांट में, ठीक है, इन फंगाई के थ्रू। स्टिमुलेट्स लॉन्च टू ग्रो थिक लश एंड हेल्दी। बिल्कुल सही बात है, अब न्यूट्रिएंट एंड वाटर आएगा तो ये तो होगा ही, है ना भैया। चलो ठीक है, आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 ओनली। मोर देन 80%, बिल्कुल सही बात है, इनफैक्ट मोर देन 90%। ये भी याद रखना, इस फैक्ट को गलत मत मान लेना, ठीक है जी। चलो, अब अगर ये ऐसा होता एग्जैक्टली 80% तो दिक्कत थी, ठीक है, बट मोर देन 80%, ठीक है। अच्छा, ये देखो, पोटैटो एंड टमेटो, पोटैटो एंड टमेटो। क्वेश्चन देखो, पोटैटो वाज ओरिजिनली ग्रोन इन इंडिया है। पोटैटो इज अ ट्यूबर क्रॉप एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल, दही आलू हम जिम से पहले खाते हैं। पोटैटो इज अ ट्यूबर क्रॉप। अच्छा, ट्यूबर क्या होता है? अच्छा, पोटैटो वाज ओरिजिनली ग्रोन इन इंडिया। ये तो आपको मालूम है गलत है। क्यों? साउथ अमेरिका में हुआ था, पोर्चुगीज लाए थे। गलत। ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर क्या होता है? ये जो स्टेम या रूट का जो एनलार्ज कंपोनेंट होता है, इसको ट्यूबर बोलते हैं। पोटैटो ऐसा ही दिखता है ना, ये होता है ट्यूबर, चाहे वो स्टेम का हो चाहे वो रूट का हो। तो रूट ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर, उसमें नहीं जाना है, लेकिन ये एनलार्ज पार्ट होता है, तो बिल्कुल इट इज अ ट्यूबर क्रॉप। याद रख लेना, बोथ 1 and 2, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज थी, स्टारफिश को एक बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया। अब स्टारफिश मर गई तो भैया जो सी अर्चिन्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। सी अर्चिन, अब सी अर्चिन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो वो भैया केल्प जो कि सीवीड होते हैं इसको खा गए। तो ये दिक्कत की बात है, क्योंकि सीवीड बहुत न्यूट्रिशनल होती हैं, कार्बन सिंक होती हैं, कार्बन को क्या कहते हैं, कैप्चर करने का काम करती हैं। तो ये मरीन फूड चेन कैसे डिस्टर्ब हुई और उसका क्लाइमेट चेंज पर क्या इंपैक्ट है वो देखने को मिला, बस याद रखना, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट, पिपराहवा, पिपराहवा रिलिक्स किससे रिलेटेड है? पॉज, सोचो, जवाब दो। बिल्कुल, बुद्धिस्ट रिलिक्स, जिनको अभी इंडिया ने वापस बुलाया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, बढ़िया एकदम प्लान बना के, ठीक है। ये बुद्धिस्ट रिलिक्स थे, आइडेंटिफाई हुए थे, बाहर चले गए थे, अब वापस आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। चलो, उसके अलावा इंडिया में एग्रीकल्चर का अगर आप ट्रेड देखोगे तो एक्सपोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, पर एक्सपोर्ट होता क्या है वो यहां लिखा है, इसको एक बार एनालाइज कर लेना। एक धीरियो नाम का फेस्टिवल होता है गोवा में, ट्रेडिशनल बुल फाइट, बुल्स के बीच में फाइट कराते हैं, जैसा कि स्पेन में भी होता है, पोर्चुगीज कल्चर से उसका ओरिजिन है। इसको लीगलाइज करने की बात हो रही है, सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना दोस्त कुछ टॉपिक्स न्यूज में थे, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि ये सिलहेटी लैंग्वेज। अब जो लोग सिलहेटी बोलते हैं, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलहेटी बोलते हैं। अब जो सिलहेटी डायलेक्ट है, जो नॉर्मल बंगाली है, नॉर्मल बंगाली, ट्रेडिशनल बंगाली, वो इसको नहीं समझ पाते। अब सिलहेट बांग्लादेश का रीजन है, तो वो बंगाली जो है इंडियन पर सिलहेटी डायलेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल जो बंगाली है वो उनको एक तरीके से बोलते हैं कि भाई तुम आउटसाइडर हो, बांग्लादेशी हो, ये बांग्लादेशी बंगाली है। तो वो उनकी इंडियन आइडेंटिटी को, ठीक है, हाइफनेट करते हैं, किससे? उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से। अब ये भैया आप क्या बोल गए, हाइफनेटेड नेशनैलिटी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे करंट अफेयर्स कोर्स का पार्ट है वो ये बात समझ पाएंगे। मैंने ये दोनों टॉपिक क्यों बोले, बिकॉज क्या होता है ना, एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स वी कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस इन टर्म्स ऑफ थीम्स। तो जैसे आपने फ्लैश फ्लड्स देखा, तो हमने GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर किया था। क्या इंट्रो है, क्या बॉडी में लिखना है, क्या सारे उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड, एक एक्रोनिम फॉर्मेट में कंक्लूजन। इसी तरह से मैंने एक टॉपिक कवर कराया था, हाइफनेटेड नेशनैलिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खैर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो उसके स्कोप में भी नहीं है, बिकॉज ये सीरीज प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है। बट मन करे ना तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों चीजों का,
और इसको पढ़ना, आपको समझ आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे हमने एक टॉपिक कवर किया था ग्राउंड वाटर स्टोरी, एग्जैक्टली मेंस में आया। इसी तरह से हमने मल्टीलेटरलिज्म कवर किया था, एग्जैक्ट मेंस में आया। इसी तरीके से हमने नॉन अलाइनमेंट 2.0 कवर किया था, IR PSIR ऑप्शनल में क्वेश्चन डायरेक्ट आया। हमने मल्टीलेटरलिज्म बाइलेटरलिज्म कवर किया था, मेंस में आया। कितने ऐसे टॉपिक्स हैं, स्मार्ट सिटी हमने क्लास में कवर किया था, मेंस में आया। मैंने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस बनाई हैं। और भाई सुनो, एक टीचर का यही अचीवमेंट होता है कि उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ गया। इसका ये मतलब नहीं है, मैं आपको फिर बोल दूं, अगर मैं ये बोलता हूं मेरे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए, मेंस में भी क्वेश्चन आए, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक टीचर हूं इस दुनिया में, नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि भैया हम भी सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे। एंड एज एन एस्पिरेंट प्लीज आप लोग ये जज करने में मत लगो कि तू क्यों बोल रहा है भैया, अच्छा ऐसा होता तो तेरा भी हो जाता। भाई सुनो, सिर्फ करंट अफेयर से एग्जाम अगर निकल रहा होता ना तो मेरा भी हो जाता। उसके लिए स्टैटिक भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, फिर उसको पढ़कर एग्जाम के प्रेशर में रेप्लिकेट करके भी आना है, डिलीवर करके आना है। उस सबके लिए ना एक स्किल लगता है, जरूरी नहीं है वो स्किल सब में हो, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं है कि जिसने एग्जाम नहीं किया वो एक पार्ट में स्पेशलिस्ट ना हो। करंट अफेयर मुझे आता है, बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, उसे पढ़ाता हूं, एंजॉय करता हूं, मुझे करने दो। अपना टाइम इस बात में वेस्ट मत करो कि तू कौन, तेरा क्या, तेरा आ गया तो तू बता क्यों नहीं रहा। भैया जब तुम लबास ना जाओगे तो फोटो नहीं डालोगे, अगर नहीं डालोगे तो हम भी नहीं डालेंगे। हमारा अचीवमेंट है, हम कैसे शेयर करें। एज अ टीचर यही अचीवमेंट होता है। इसीलिए इन चक्करों में क्यों पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, मौज करो, है ना। हमसे बहस करने में, हमारे को एक्सपोज करने में कुछ नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली तुम्हारा ही फायदा है। और सारे टीचर अच्छे हैं। एज अ करंट अफेयर्स टीचर मैं भी बोलता हूं, मैं अकेला पूरे यूपीएससी इंडस्ट्री के करंट अफेयर्स का बीड़ा नहीं उठा सकता। और अच्छे टीचर्स हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो, और अच्छा कंपाइलेशन है, उनसे भी पढ़ सकते हो। सारे लोग अच्छे हैं, आपका अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए। सारे लोग मेहनत ही कर रहे हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। आपको जिसका समझ आए उसका पढ़ लो, सीधी बात है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको हमारे कोर्स का पार्ट बनना है, उससे पहले आपको एक 5 डे करंट अफेयर्स रिफ्रेशर कोर्स मैंने रन किया था। ये 5 डे रिफ्रेशर कोर्स में मैंने जून जुलाई अगस्त तीनों महीने के प्रीलिम्स और मेंस सारे करंट अफेयर रिवाइज कराए हैं। जो आपने ये थीम देखी हमारी एक्सप्लेन से हटकर, जिसमें सारे न्यूज़पेपर्स कवर होते हैं, सारे PIB वगैरह सब कवर होता है, वो प्रीलिम्स के लेक्चर सबकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वेबसाइट www.gaursepadho.com पर फ्री कोर्स में अवेलेबल है। आप नोट्स देख सकते हो, सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, सब कुछ जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। इनफैक्ट आपके लिए एक प्रीलिम्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें मेजॉरिटी जो कंटेंट है वो स्टैटिक से बेसिक स्टैटिक, बेसिक कॉमन सेंस और पिछले 3 महीने के करंट अफेयर में से ही है। तो जाओ उसको देखो, एंजॉय करो। अगर आपको ये कुछ आर्टिकल और हैं, इनको भी आप देख लेना। अगर हमारे कोर्स का पार्ट बनना है, हमारे अलग अलग ऑप्शन है, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा सपोर्ट नंबर है 9870129055। 6 लेक्चर्स में हम 1 मंथ का आपका करंट अफेयर कवर करा देते हैं, विद नोट्स। प्रीलिम्स के नोट्स अलग, मेंस के नोट्स अलग। उसी के साथ में आपको हमारी करंट अफेयर्स पत्रिका मिलती है उसमें, जिसमें प्रीलिम्स के नोट्स अलग, मेंस के नोट्स अलग, प्रीलिम्स के क्लास नोट्स, इनफैक्ट मेंस के मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर, और साथ ही में एक प्रीलिम्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है, ठीक है जी। तो आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हो। हमारे जो फीडबैक्स हैं दे स्पीक फॉर अस। हमने बहुत मेहनत करी है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी स्पेशलाइजेशन पर फोकस कर करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनाई है। आप उससे जुड़ सकते हो, अभी भी सही टाइम है। करंट अफेयर रिफ्रेशर कोर्स देखो और अब से रेगुलर हो जाओ। करंट अफेयर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग रिमेनिंग 2 वीक्स ऑफ अगस्त को कवर करेंगे। उससे अगले फ्राइडे हम 2 वीक्स ऑफ सितंबर को कवर करेंगे, एंड देन हम अपने रेगुलर फॉर्मेट यानी कि एक फ्राइडे को पिछले वीक का पूरा एक्सप्लेन कवर करके अपने रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है जी। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस। इफ यू आर, देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अ फेलो एस्पिरेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।